Today it is the very basic class of spoken English, and it is class first, and I will be telling about the basics of spoken English and how can you start speaking English step by step, and it will be a 40 days course. And welcome to this first session of this course. And today we will be elaborating very basic things of spoken English. For example, if you know how to use is, am or are, you can speak as well. If you will to speak, if you want to speak, then you can. For example, everyone knows how to use is or are or am. So I'll be taking some example here. We all know that we use am with I. We use is with he. We use are with you. Suppose someone asks you, who are you? And you know what it means? इसका मतलब हम सबों को पता है, and we can answer it very simply, and in many ways, in several ways we can answer it. For example, I can say I am Amit. I can say I am a teacher. I can say I am Ram's friend. I can say I am an Indian. I can say I belong to Bihar, or I am a Bihari. So we have many sentences to say if you know the exact answer, and you can answer it in many ways. तो मेरा जो पहला बेसिक सा क्वेश्चन था कि यदि आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप इसके 100 तरीके से जवाब दे सकते हैं. आप कह सकते हैं कि मैं किसी का मित्र हूँ, लाइक एज आई सेड आई एम राम्स फ्रेंड. या फिर आप कह सकते हैं कि मैं एक भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन. आप कह सकते हैं आई एम अपना नाम, आई एम राम, आई एम श्याम, वॉट एवर यू आर. एंड यू कैन से so many answers. You can answer in many ways, as I said. So moving to the next, and just we will change the pronoun. Suppose someone asks you, who is he? Just one thing has changed, that is he, and we are using is instead of am. तो हम लोग am की जगह is का प्रयोग कर रहे हैं और pronoun I को रिप्लेस कर रहे हैं he से. तो अब इसे हम कैसे जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल वही बेसिक सा आंसर होगा इसका भी. सपोज समवन इज आस्किंग यू हु इज ही, वह कौन है. ये तो सभी समझ रहे हैं ना, ये काफी बेसिक सा सवाल है. जैसे आपसे पूछा गया हु आर यू, उसी तरह से हु इज ही. ही यहां पर एक थर्ड पर्सन है, किसी के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन है. सो यू कैन आंसर इट एज यूजुअल इन मेनी वेज. यहां पर भी आप इसे बहुत तरह से इसका जवाब दे सकते हैं. तो आप कह सकते हैं जैसे कि he is my friend, he is Syam, he is a student. Whatever, आप बहुत तरह से इसके जवाब अगेन दे सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन का जवाब दिया. ठीक है. और अब जब बात होती है और भी बेसिक्स क्वेश्चंस की, तो फिर इंट्रोडक्शन कैसे पीछे रह सकता है. हम आज के इस क्लास में इंट्रोडक्शन के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, किस तरह से हम it is very basic question that how will you introduce yourself. So introduction must not be very large. It must be about you, and it must be very brief. Brief means काफी कम शब्दों में, जितने कम से कम शब्दों में आप अपना परिचय दे सकें उतना अच्छा है. It must not be very lengthy. इसे काफी बड़ा होना जरूरी नहीं है, और ये आपका इंट्रोडक्शन है, एंड इट मस्ट बी अबाउट यू. ये आपके बारे में ही होना चाहिए. सो आई विल बी राइटिंग हियर 5 sentences, एंड इट विल बी एनफ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. And you can start it by just greeting. Greeting means abhivadan, whatever you want to say, like good morning, good evening, good afternoon. And after this, you may start introducing yourself by introducing first your name, your profession, your class, if you are a student. And after that, you will be telling about your belongings, like the place where you belong to. आप जहाँ से belong करते हैं वो आप बता सकते हैं. And then you will be talking about your family background. फिर आप अपने family background के बारे में बता सकते हैं. Then you can also add your hobbies. Okay. So first of all,
The greeting, this part is very important. Some people miss it, don't use, they don't use greetings, and it is very rude. I think you should use. Okay, and after that you will be telling your name. आप अपना नाम बताइए, एंड देन आप आपका प्रोफेशन क्या है. लाइक आप जैसे एक स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे, स्वाभाविक है, आई एम ए स्टूडेंट. यहां पर भी आप चाहें तो कुछ भी आप नाम जो है, सरनेम जरूरी नहीं है, सेकेंड नेम जरूरी नहीं है, आप चाहें तो सिर्फ फर्स्ट नेम कहकर भी कह सकते हैं, या पूरा नाम बोलना चाहते तो पूरा नाम भी आप बोल सकते हैं. एंड आफ्टर दिस, इसके बाद जो है आप बताएं अपने क्लास के बारे में. आई रीड इन क्लास, वट एवर क्लास डू यू रीड इन, आप जिस कक्षा में हैं. एंड आप बात करेंगे आई लिव एट, आप जहां भी किसी लोकेलिटी में जहां रहते हैं. और द क्वेश्चन राइजेज हियर दैट व्हाट प्लेस शुड बी टोल्ड, कौन सा जगह का नाम बताया जाना चाहिए, क्या जगह हो वो. तो ये अक्सर हमें ऐसे जगहों के नाम का यूज़ करना चाहिए जो कि वेल नोन हो, लोग जिसे जानते हों. अब सपोज हम कहीं अदर स्टेट में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वहाँ हम किसी अपने विलेज का नाम कहेंगे तो स्वाभाविक है नहीं समझ आएगा. तो हमें वहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम को यूज़ करना चाहिए जो कि कम से कम लोग उसके बारे में सुने हुए हों. ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली आप अपने ब्लॉक का नाम कह सकते हैं, अपने विलेज, यदि आपके विलेज का नाम लोग जान रहे हैं तो आप विलेज का नाम भी कह सकते हैं. और एट यहाँ पर लोकेलिटी को बताने के लिए ही यूज़ किया जाता है. It's very usual. Then you can tell about your family background. As I told you, my father is, whatever your father does. For example, my father is a farmer. I can say my father is a farmer. The profession, what he does. And after that you can also add your mother's profession. If she is nothing, she just does household works, you can say my mother is a homemaker. And finally you can tell about your hobbies, like I like, or my hobby is, I like whatever you, if you like playing, I like playing cricket, you may say. And at last you should add that's all. That's all about me. And you should thank for listening. Thank you. मैंने एज का चर्चा नहीं किया है. I have not mentioned here what's my age, how old I am. It doesn't matter much. You can use or not, it's up to you. And if some sentences are missing, they can ask for that. वे आपसे पूछ सकते हैं यदि वे इच्छा रखते हैं जानने के बारे में. तो आप चाहते तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते थे आई रीड इन क्लास के बाद, लाइक आई एम वट एवर, हाउ ओल्ड आर यू, आप जो भी यहाँ पर बता सकते थे. लाइक आई एम जो भी 20 ईयर्स ओल्ड या 16 ईयर्स ओल्ड, जो भी आपकी एज है ये बता सकते थे. इसके अलावा कई बच्चों की ये होती है क्वेश्चन कि क्या हम यहाँ पर हमें अपने एम्बिशन को लेकर बताना चाहिए. तो आई पर्सनली डोंट थिंक दैट यू शुड मेंशन व्हाट यू वांट टू बिकम, what is your goal or what is your ambition. You should be comfortable with your introduction. It should be in 5 to 6 sentences and it's enough. It doesn't need even more anything else. And if the person before you wants to know anything else, then he must ask. उसे पूछ लेना चाहिए यदि वो कुछ और जानना चाहता है तो. And after that you must know the response, the answer to that question as well, and I will teach you that. Okay, and after writing this I would like to read out it. You can listen and you can also repeat with me. As I said, your introduction must be starting with greeting. Good morning, my name is Amit.
I am a teacher, I teach English. And if you are a student, you will say I am a student, I read in whatever class you are reading in. And after that I will say I live at Pripyat, or whatever you know the place. I live at Barahat, and my father is a farmer, my mother is a homemaker, and I like playing cricket, or whatever hobby do you prefer, जो भी आपको पसंद है. And at last you will be saying that's all about me, thank you. And this is the introduction, and this is a perfect introduction. And people misguide you that you should add it in so many things, your father's name, your mother's name, and I will never recommend you to do so, because it is just a boring thing what you do in with your introduction. And इंट्रोडक्शन के बाद जो अब मेन पार्ट आता है कि हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस के जवाब कैसे दे पाए. मैंने शुरुआत भी आज बेसिक क्वेश्चन से ही करी थी. सो आई हैव सम मोर बेसिक क्वेश्चंस एज आई टोल्ड यू. आई हैव रिटन ओवर हियर एंड आई विल बी आंसरिंग देम, एंड इफ यू कैन आंसर you will be answering as well. Okay, so the first question is, what's your ambition? Ambition is very well known term. It is about your goal, it is about your destination, what you want to become in your life, and that will be the answer of this question, that whatever you want to be in your life. As I will say, I want to be a teacher, and you may say whatever you want to become. I want to be a doctor, or as you can say my ambition is to be a doctor, or my goal is to be a doctor. And the next one is, what did your brother do? And it is not only about your brother. It can be about your sister, it can be about your any relative. और यहाँ पर जब भी क्वेश्चन में सेकंड पर्सन होता है तो आपको जो है फर्स्ट पर्सन का यूज़ करना चाहिए यहाँ पर. जैसे कि यू का पजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पर योर, तो आपको आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई यूज़ करना चाहिए. माई ब्रदर इज़. अब यहाँ पर आपके भाई साहब जो भी करते हैं, व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपके भाई जो भी करते हैं यहाँ पर आप बताएंगे माई ब्रदर इज़ अ टीचर, माई ब्रदर इज़ टीचर. या फिर मान लीजिए सेम प्रोफेशन में है, मतलब भाई भी स्टूडेंट है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं माई ब्रदर इज़ आल्सो ए स्टूडेंट, आल्सो भी यूज़ कर सकते हैं आप. ठीक है. उसी तरह से सिस्टर के बारे में हो सकता है कि लाइक व्हाट डज योर सिस्टर डू, यू कैन से माई सिस्टर इज. जो भी यदि वो कुछ कर रही है, कोई प्रोफेशन में है, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं. अब नेक्स्ट वन है कि हु इज़ योर आइडियल पर्सन. एंड दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड people ask very often. You can mention the person like whom you want to become. आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं, and the person you follow personally, जिसको आप personally follow करते हैं, जिनके विचार आपको अच्छे लगते हैं, the thoughts that you love. यहाँ पर आपके who के जगह कोई भी हो सकता है, like my father भी कह सकते हैं, या कोई great personality है, पीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, and many more. What is your favorite subject? And it is about the subject, but it can be about so many things, like what's your favorite season, what's your favorite film, what's your favorite color, what's your favorite dish, what's your favorite place. It can be anything. कुछ भी हो सकता है. किसी भी बारे में आपके पसंदीदा चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं. What's your favorite TV serial? You can change it what by who for asking about people. यदि आप लोगों के बारे में पूछना चाहते हैं तो what को सिर्फ आप who से रिप्लेस कर दीजिए. Like who is your favorite actor? Who is your favorite leader? Who is your favorite teacher? Who is your favorite cricketer? Who is your favorite footballer? And this is very basic question if you want to even ask or even to answer. इसका सवाल करना भी आसान है और जवाब देना भी काफ़ी आसान है, क्योंकि इसी में जवाब छिपा होता है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि योर को आपको माई से बदल देना है, देन काफ़ी आंसर सिंपल हो जाता है. लाइक माई फेवरेट सब्जेक्ट, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ्स है, इंग्लिश है, जो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. व्हाट्स योर फेवरेट पास टाइम? एंड मे बी यू विल नॉट बी नोइंग दिस टर्म, बट इट इज़ वेरी सिंपल. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. इसका सिंपल सा आंसर होगा कि आपका फेवरेट पास टाइम क्या है. पास टाइम मीन्स लाइक ऐसा
pastime refers to an activity that you do to just just hang on, like just to entertain yourself or just to spend your free time. यानी खाली वक्त को ऐसे ही बिताने के लिए आप कैसी एक्टिविटी करना पसंद करते हैं. Like if you like watching TV in your free time, you may say like watching TV is my favorite pastime, or you may say helping my mom in my kitchen is my favorite pastime, or studying storybooks, watching cartoons, playing with my friends, talking to my family members, yeah, or spending time with my family members. Anything can be your favorite pastime, and you should mention it. For example, I will say watching films is my favorite pastime. My favorite pastime. And last one, which season do you like the most? As I told you before, you may ask it by saying what's your favorite season, or you may use which season do you like the most, कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सीजन पसंद है. तो आप इसका आंसर सिंपल सा आई, यू के जगह आई हो जाएगा. आई लाइक स्प्रिंग द मोस्ट. अब जो भी सीजन आपको पसंद है यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं. आई लाइक विंटर द मोस्ट, आई लाइक समर द मोस्ट, आई लाइक रेनी द मोस्ट. द मोस्ट मतलब यहाँ सुपरलेटिव आप सभी जान रहे हैं, इसलिए हमने द का प्रयोग किया हुआ है, यानी सबसे अधिक जो आपको पसंद है. ठीक है, तो ये थे बेसिक क्वेश्चंस. और आज के इस सेशन में हम लोग एक और चीज़ सीखेंगे जो कि काफ़ी ज़रूरी है. हम यहाँ पर कुछ वॉकैब लिखेंगे, कुछ वॉकेबुलरी लिखेंगे, कुछ वर्ड्स जिनसे कि हमें सेंटेंसेस बनाने सीखनी है. काफ़ी बेसिक से शुरुआत करेंगे, बहुत ही छोटी छोटी सेंटेंसेस बनाएंगे, और यहीं से आपकी सफ़र का शुरुआत होगा कि किस तरह से आप चीज़ों को देखते ही आप दो शब्द, दो लाइन, शुरुआत तो ऐसे ही होगी. और चूँकि लैंग्वेज होता है, ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये बात ध्यान रखिए कि यदि आपको कुछ चीज़ें इसमें नहीं भी समझ आए तो आप अगले सेशन में उसे ज़रूर सीखेंगे. ऐसे नहीं कि अब ये चीज़ें मैंने बता दी तो दोबारा मैं इसका जिक्र नहीं करूँगा. और चूँकि अब आप किस लेवल पे हैं वो आपको समझना होगा, आपको जानना होगा, और उस हिसाब से चीज़ों को अडॉप्ट करते चलना होगा. अब एक बच्चा जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट, एक बच्चा जो है वो शुरुआत में एक शब्द तक नहीं ढंग से बोल पाता है, बड़े बड़े शब्द वो नहीं बोल पाता है, छोटे छोटे चीज़ों को वो अडॉप्ट कर पाता है. यदि आप सारे सेंटेंस नहीं सीख पाए, 6 में से 2 भी सीख पाए, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में. और इस तरह से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं. और मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज, हालांकि लैंग्वेज सीखने की उम्र होती है. इफ़ यू आर बिलो 15, यदि आप 15 के नीचे हैं तो आप जल्दी इन चीज़ों को सीख पाएंगे. लेकिन आप चूंकि आपकी एज 15 से ज़्यादा होगी तो हो सकती है आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े, क्योंकि हर चीज़ की एक उम्र होती है. लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब तो आप और ज़्यादा समझदार हैं. बस चीज़ों को ऐसे समझने की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से, कि हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या यूज़ कर रहे हैं. थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन आप बनाइए. बिल्कुल, यहाँ मैं तो नहीं बनवा सकता ना, यहाँ तो मैं बस बोलने की प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, और साथ ही साथ आपसे मैं वो जवाब बुलवाने की कोशिश कर सकता हूँ. ठीक है, वो काम कर सकते हैं. एंड जो मैं आपको आज जिस पार्ट का मैं सबसे जिक्र कर रहा हूँ वो पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा. द टाइम व्हेन विल यू स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेज, मेकिंग योर ओन सेंटेंसेज, इट इज़ क्लियर दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. जिस समय से आप सेंटेंसेज बनाने लग जाएंगे अपने मन से, लाइक इफ़ आई हैव दिस पेन, यदि मेरे पास ये कलम है तो आई विल से लाइक दिस इज अ ब्लैक पेन, वॉट एवर यू नो अबाउट इट, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कलर्स, ब्लैक एंड वाइट. आप देखिए, चीज़ों को इलेबोरेट करने का प्रयास कीजिए. ऑलवेज ट्राई टू इलेबोरेट सेंटेंसेज, वॉट एवर थिंग्स दैट यू सी अराउंड यू. जो भी चीज़ें अपने आसपास आप देखते हो उसके बारे में जस्ट थिंक एंड try to create a sentence. If the day is sunny, you will say it is a sunny day. If you are starting this, if you start doing this, then everything will be very easy for you. Okay, so as I said, I have 10 words here. I will read out: week, school, new, teacher, English, pen, house, chair, dress, easy,
एंड आई होप यू नो ऑल दिस वर्ड्स बिफोर। आपको पहले से इन सब वर्ड्स के बारे में पता है। एंड जस्ट यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, not only one. If you can do more than one, it's better. Just think about this word. What does it mean? How can you make sentences from it? The first word is week. Week means सप्ताह। week का अर्थ सप्ताह होता है, हम सभी जानते हैं। And how can we make sentences from it? It can be very basic sentences like you may say A week has 7 days. एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। You may say, for example, this is 26th of February. Is this 26th? Okay. Then it may be the 4th week of February. You can say this is the 4th week of February 2023. You can say there are 7 days in a week. You can say I will be going to Patna this week. You can say my father is coming from Patna the next week. I went to Delhi last week. There can be a number of sentences. बहुत सारे sentences हैं जो आप बना सकते हैं. Just start thinking about it. And that's the problem. You don't think. आप नहीं सोचते हैं, आप कोशिश नहीं करते, यू डोंट ट्राई एंड इट लीड्स टू यू फेल्योर। यही आपके ना होने का जो है कारण है। आप कोशिश करिए, छोटा सा सेंटेंस आप इतना तो बोल सकते हैं ना, ए वीक हैज 7 डेज। सबसे बेसिक सा सेंटेंस है, किसी को भी यदि 4 बार इसको देखा जाए, सोचा जाए तो काफ़ी आसान सा सेंटेंस है ये, ए वीक हैज 7 डेज। अब इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं। हाँ, छोटी छोटी मिस्टेक्स यदि हो रहे हैं, आप मान लीजिए डेज की जगह डे बोल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूव हो जाएगा। और भी सारे आप सेंटेंसेस, जैसे कि मैंने कहा कि इसी को दूसरे सब तरह से यदि कहा जाए, देयर आर 7 डेज इन ए वीक, ये भी मीनिंग दोनों का सेम है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसका मतलब भी वही है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो और भी चीज़ें हम, जैसे मैंने कुछ नया कोशिश किया, लाइक नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, जैसे मैंने कहा कि तो फ्यूचर में आपको बोलना होगा, लास्ट वीक लगा रहे हैं तो पास्ट में बोलिएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको तो जानना चाहिए, ठीक है। ये आपको यदि कोई और आइडिया आ रहा है, कोई और सेंटेंस आपके मन में आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। एंड देन नेक्स्ट, स्कूल। स्कूल भी काफ़ी कॉमन सा वर्ड है, हम सभी सुनते हैं इसके बारे में। लाइक कुछ भी आप सिंपल तो सोच सकते हैं, लाइक माई स्कूल इज़ वेरी बिग, माई स्कूल इज़ फार अवे फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से काफ़ी दूर है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। बहुत सारे सेंटेंसेस सोच सकते हैं, लाइक देर आर 5 रूम्स इन माई स्कूल, there is a playground in my school, there are 400 students in my school, I go to my school daily, he never goes to school। हजारों सेंटेंसेस हो सकते हैं, बस आप शुरुआत कीजिए, ठीक। तो यहां पर मैं एक लिख रहा हूं, my school is far away from माई हाउस। थोड़ा बड़ा सेंटेंस है बट आप कोशिश कर सकते हैं। फार अवे मतलब होता है बहुत दूर, ठीक है। मेरा विद्यालय जो है मेरे घर से बहुत दूर है। आप यहाँ पर होम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि होम का अर्थ थोड़ा अलग हो जाता है, वो एडवर्ब की तरह वर्क नहीं करता। अब देखिए, मैंने अगला जो वर्ड लिया है वो एक एडजेक्टिव है, न्यू। और ये तो और आसान हो सकता है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, जैसे कि आई हैव ए न्यू ड्रेस, आई हैव अ न्यू पेन, ही हैज़ अ न्यू बुक, the house is new, the fan is new। कुछ भी आप न्यू से सोचिए, लाइक आई लाइक न्यू थिंग्स, मुझे नई चीज़ें पसंद है, या आई एम गोइंग टू बाय ए न्यू कार, मैं एक नई गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ। आई हैव अ न्यू बाइसिकल, मेरे पास एक नई साइकिल है, या माई ब्रदर हैज़ अ न्यू ड्रेस, मेरे भाई के पास एक नया ड्रेस है। तो बहुत सारे एडजेक्टिव से आप यहाँ पर नाउन का साथ में यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आप भी एक कोशिश करें, जैसे कि मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ, द चेयर इज न्यू। छोटा सा ही सेंटेंस है बट है तो शुरुआत तो कर सकते हैं। लाइक द चेयर इज न्यू, कुर्सी नई है,
द चेयर इज़ नॉट न्यू, कुर्सी नई नहीं है। माई फोन इज़ नॉट न्यू, मेरी फ़ोन नई नहीं है। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, द वर्ड टीचर। टीचर मीन्स शिक्षक, हम सभी जानते हैं। एंड इसके भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, लाइक आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, आई लव माई टीचर्स, माई टीचर्स आर वेरी गुड, लाइक माई टीचर्स टीच वेरी वेल, मेरे शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। लाइक और भी, जैसे कि माई फेवरेट टीचर इज, जो भी आपके शिक्षक, पसंदीदा शिक्षक है, आप उनके बारे में कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि अ टीचर इज ए रिस्पेक्टेबल पोस्ट, शिक्षक जो है एक रिस्पेक्टेबल पर्सन कह सकते हैं। ए टीचर इज ए रिस्पेक्टेबल पर्सन, एक सम्मानित आदमी एक होता है, सम्मानजनक आदमी होता है। ए टीचर शुड बी डिसिप्लिन्ड, ए टीचर टीचेज हिज स्टूडेंट्स विथ ऑनेस्टी, एक शिक्षक अपने छात्रों को ईमानदारी से पढ़ाता है। तो छोटा ही सोचिए, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे द टीचर इज ए रिस्पेक्टेबल पर्सन, द टीचर इज ए रिस्पेक्टेबल पर्सन। नेक्स्ट वन इज इंग्लिश। तो इंग्लिश से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, लाइक आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, एवरी वन वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, my favorite subject is English, I teach English, I want to study English, I want to be a speaker of English, मैं इंग्लिश का एक स्पीकर बनना चाहता हूँ। I want to write in English, I want to discuss in English। इंग्लिश से जुड़ा हुआ बहुत सेंटेंस आप बना सकते हैं, लाइक दिस इज़ माई इंग्लिश बुक, he is my English teacher। तो यहां पर हम एक सिंपल सा सेंटेंस लिखेंगे, I like studying English, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पसंद है। I like studying English। नेक्स्ट वन, पेन। ये भी काफ़ी सिंपल सा सेंटेंस है, आप यूज़ करिए इसमें, जैसे कि my pen is new, माई पेन इज़ न्यू के बदले कॉस्टली यूज़ कर लीजिए, मेरी कलम कीमती है, महंगी है। या फिर कह सकते हैं कि माई पेन इज़ ब्लैक, या फिर इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से बोल सकते हैं, आई हैव अ ब्लैक पेन, आई हैव 2 पेन्स, आई एम गोइंग टू बाय अ पेन, ही हैज़ नो पेन्स, उसके पास कलमें नहीं है। ही इज़ गोइंग टू बाय अ पेन, ही लॉस्ट हिज पेन, उसकी कलम खो गई। हाउस है नेक्स्ट वन, हाउस घर, जिसे कह सकते हैं द हाउस इज वेरी बिग, या द हाउस इज बिग, या द हाउस इज ओल्ड। एडजेक्टिव्स का यूज करना सीखिए, और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। जैसे घर मेरा है, द हाउस इज माइन, माइन ही बोलते हैं, लास्ट में हम माइन बोलते हैं, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। The house is mine. Next one, chair. Chair is a furniture, and there can be also many sentences, जो बहुत सारे sentences बना सकते हैं, जैसे कि the chair is broken, कुर्सी टूटी हुई है, the chair is broken। जैसे कि I want to buy a new chair, I have 4 chairs in my house, मेरे घर में 4 कुर्सियाँ हैं। He is sitting on the chair, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है। He broke the chair, उसने कुर्सी तोड़ दी। He is standing on the chair, वह कुर्सी पर खड़ा है। The chair is very expensive, कुर्सी बहुत महंगी है। The chair is red, कुर्सी लाल है। बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज ड्रेस। ड्रेस, जैसे कि यहाँ पर हम एक सिंपल सा सेंटेंस लिखेंगे, आई एम गोइंग टू बाय, मैं खरीदने जा रहा हूँ, अ न्यू ड्रेस, एक नई ड्रेस मैं खरीदने जा रहा हूँ। कुछ भी और भी सारा सेंटेंस बोल सकते हैं, लाइक माई ड्रेस इज न्यू, माई ड्रेस इज अगेन expensive, my dress is
नॉट वेरी ओल्ड, मेरी ड्रेस बहुत पुरानी नहीं है, माई ड्रेस इज़ अट्रैक्टिव, माई ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, या माई सिर्फ माई ही क्यों, कुछ भी हम हिज बोल सकते हैं, हिज ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उसका ड्रेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। तो सेंटेंसेस जब आप बनाओगे तो काफ़ी आसान लगेगी चीज़ें। देन है ईजी। ईजी मीन्स आसान होता है, इसका भी हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, लाइक इट इज़ ईजी टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेज़ी बोलना आसान है। या फिर इसी को ऐसे कह सकते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ वेरी इजी, या दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। या फिर और भी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू राइट ए सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखना काफ़ी आसान है। इट इज़ वेरी इजी टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना बहुत आसान है। इट इज़ वेरी इजी टू फूल समवन, किसी को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। इट इज़ वेरी इजी टू गो देयर, वहाँ जाना काफ़ी आसान है। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, लाइक ही इज़ डूइंग एन ईजी टास्क, वो एक आसान सा टास्क, आसान सा कार्य कर रहा है। ही इज़ डूइंग एन ईजी टास्क। तो ये तरीके हो सकते हैं, अंग्रेज़ी को हम फ्रेंडली सीख सकते हैं, काफ़ी फ्रेंडली लैंग्वेज बना सकते हैं इसको। और एक और प्रयास आपसे गुजारिश है करिए कि जो आप सीखते हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए, या तो पेन पेपर लेकर लिख लीजिए, या फिर आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, कुछ भी कीजिए, बट बोलिए मन ही मन 4 बार बोलिए। इंट्रोडक्शन को वो 5-6 लाइन जो इंट्रोडक्शंस की थी उन्हें 10 बार बोलिए, और देखिएगा कि नेक्स्ट टाइम वो आपको बेहतर लगेगा और आप उन चीज़ों को और आसानी से सीख पाएंगे। ये काफ़ी ज़रूरी है। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, देखिए मैंने तो मैं सच बताऊं तो मैंने सोचा था कि पूरे क्लास को मैं इंग्लिश में ऑपरेट करूंगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं। मैं यदि सारी चीज़ें इंग्लिश में बोलूँगा तो आपको हो सकता है कि आपको कुछ समझ नहीं आए, इसीलिए मैंने इसको एक हिंग्लिश जैसा सेशन बनाया, हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर, ताकि आप चीज़ों को फ्रेंडली समझ सकें। एक साथ में एक हेडेक नहीं देना चाहता आपको, और कोशिश करने से ही होगा। इफ़ यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश देन यू विल नॉट बी एबल टू, यदि आप बोलेंगे नहीं तो कभी नहीं बोल पाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखें। यदि कोई कहता है, इफ समवन सेज दैट ही विल टीच यू इंग्लिश बाय स्पीकिंग हिंदी, इट इज नेवर पॉसिबल, कभी संभव ही नहीं है। यदि कोई कहता है कि हम हिंदी बोल बोल कर आपको अंग्रेजी सिखा देंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम सुनते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, जो बोलते हैं, वही चीज़ें हम सीख पाते हैं। और यदि हम इंग्लिश बोले ही नहीं, आप सुने ही नहीं, आप लिखे ही नहीं, तो फिर सीखेंगे कैसे? तो चीज़ें यही हैं। और इसके अलावा एक और इनिशिएटिव आप ले सकते हैं कि किसी भी टॉपिक के बारे में सोचकर 5 लाइन 10 लाइन रोज़ एक टारगेट बनाइए। हम ये नहीं कहते सिर्फ यही एक तरीका है, हम बहुत सारे आपको तरीके बताते हैं। आप दिन में जो चीज़ें करते हैं, शाम को बैठकर उसको लिखना शुरू कीजिए। आपने वॉट एवर द थिंग्स दैट यू डिड इन अ पार्टिकुलर डे, जो भी चीज़ें आपने की उस दिन, आप शाम को लिखने बैठ जाइए। गलतियाँ होंगी, एरर्स होंगी, लेकिन आपको खुद ब खुद रियलाइज होता चला जाएगा कि नहीं, हमने यहाँ मिस्टेक की। पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। द डे आई स्टार्टेड राइटिंग माई डायरी, आई वॉज मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। मैं बहुत सारी गलतियाँ कर रहा था, बट विथ टाइम आई जस्ट वेंट विथ इम्प्रूवमेंट्स, बहुत सारे उसमें सुधार होते गए। और एक दिन ऐसा आया जब मुझे खुद पता चलने लग गया कि लाइक हियर आई हैव मेड अ मिस्टेक, मैंने यहाँ एक गलती की है। तो जिस दिन आप अपनी गलती खुद से पकड़ने लगोगे, उस दिन समझ लीजिए फिर आप सिखाने के योग्य हो गए। बोलने तो छोड़िए, आप सिखा भी सकते हैं किसी को। और ये चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर, और ये करने से ही होगा, ऐसे कभी नहीं होगा। तो टॉपिक राइटिंग हो, या फिर आप डेली चीज़ों को एक डायरी राइटिंग से शुरुआत करें, या फिर आप मूवीज़ देखें। हम ये नहीं कह रहे मूवीज़ देखें मतलब क्या, आप फिल्में देखने लग जाइए। फिल्में देखने से कोई अंग्रेजी नहीं सीखता, लेकिन आप जब भी कोई ऐसी फिल्में देखते हैं जो काफ़ी इंस्पिरेशनल हो, और साथ ही साथ सबटाइटल्स ऑन करके, सबटाइटल्स को पढ़ने समझने का, मैं हकीकत बताऊं, मैंने जानबूझकर कई ऐसी दूसरी भाषाओं की फिल्में देखी हैं जिसको समझने के लिए मुझे सबटाइटल्स पढ़ना पड़े। मैं लैंग्वेज नहीं समझ रहा हूं, बस सबटाइटल्स पढ़कर समझने की कोशिश। तो सुनने से भी इंसान सीखता है,
और बोलने से तो सीखता ही है। तीनों चारों चीज़ें होनी ही चाहिए। आप सभी जानते हैं LSWR काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी लैंग्वेज के लिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ये चारों जब तक नहीं करेंगे तो कभी भी आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में मास्टरी नहीं हासिल कर सकते हैं। और मास्टरी नहीं हासिल करना है बट टॉलरेबल इंग्लिश भी सीखनी है, तो उसके लिए भी प्रयास एटलीस्ट तो करना ही होगा। यू विल हैव टू मेक योर एफर्ट। ओके, सो दिस वॉज इनफ फॉर टुडे एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन tomorrow. Thanks for watching.